Hi everyone, my name is Ishana, a second year MBBS student at PIMCH Meghalaya. So today in this video, I'm going to talk about how to apply for प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यानी कि PIMCH मेघालय में आपको कैसे अप्लाई करना है और कहाँ से अप्लाई करना है. तो फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद स्टेट कोटा स्टूडेंट फॉर दोज हु हैव मेघालय डोमिसाइल और जिसको भी स्टेट का थ्रू अप्लाई करना है. सो देयर इज अ वेबसाइट ऑफ मेघालय गवर्नमेंट www.meghhealth.gov.in. तो उस पर जब उस ऐप पे ये कॉलेज से एडवर्टाइज करेंगे या फिर मेघालय गवर्नमेंट से जब वो एडवर्टाइज करेंगे तो आप ज़रूर जाके अप्लाई कीजिएगा. जो भी आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे भरना होगा, लाइक जैसे कि आपका नीट का स्कोर कार्ड, 10th-12th का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट एंड मेनी मोर सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा. सो आफ्टर दैट भरने के बाद then you will wait for the merit list. The merit list will decide those students who will qualify for the college and the further process, and after that you can go through the counseling process. So basically यही होता है कि जो आपका merit list के बाद ही आपका counseling start हो जाता है. So next I will be moving ahead for the management quota student, how to apply and from where to apply. So for management quota you can directly contact from the official website of PIMC, यानी कि PS Amma Medical College and Hospital, and then after that you can search for the new advertisement or new session in further days. जब वो लोग एड्स करेंगे या फिर जब आप कांटेक्ट करोगे उन लोग के साथ, then you will get to know about it more clearly, like how to take admission or from where to take admission, because management quota, like I think there is a website कुछ www. something maska. कुछ तो ऐसा था, तो I will mention the screen if I get that website. For management quota, I'll prefer that you should contact to college authority for this, because details ढूंढिएगा तो आपको easily मिल जाएगा वहाँ पे, जो भी कस्टमर केयर है, सपोर्टिव केयर का मैनेजमेंट वगैरह वगैरह आपको मिल जाएगा. So do that, and after that, like if you're going for the further like एडवर्टाइजमेंट, फॉर्म फिलअप, ये सब, तो फिर ऑफ कोर्स मैनेजमेंट कोटा में भी ये होता है कि आपको फर्स्ट फॉर्म फिलअप करना होता है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके बाद जाके आगे का काउंसलिंग शुरू होते हैं कि लाइक यू आर क्वालिफाई फॉर द फर्दर प्रोसेस और नॉट, लाइक आप इस कॉलेज में आगे लाइक एडमिशन ले पाओगे कि नहीं. तो यही है, लाइक सेम नीड स्कोर कार्ड इज रिक्वायर्ड, देन योर बर्थ सर्टिफिकेट, योर 10th-12th मार्कशीट and the further documents which is very important for the admission process, ये सब वगैरह आपको चाहिए होगा. For this process you should get ready with all the documents whatever required in further processes, and most importantly in my time in 2024, where like my batch is the first batch, so उस टाइम पे सिर्फ वन लाइक इन वन गो पे काउंसलिंग हो गया था. पर जो लास्ट ईयर यानी कि जो सेकेंड बैच है, जो कि सेकेंड बैच है 2025 बैच जो है, उन लोग का 4 काउंसलिंग हुआ था. लाइक 4 काउंसलिंग हुआ था उन लोग की केस पे, क्योंकि 3 मेन काउंसलिंग था एंड लास्ट 4th काउंसलिंग वाज आई थिंक वैकेंसी सीट कुछ ऐसा समथिंग था. तो मे बी दिस टाइम ऑल्सो दे विल गो विद द सेम काउंसलिंग प्रोसेस लाइक जो लास्ट टाइम का था. देन इसमें मेन पॉइंट ये है कि दोज हु आर अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट काउंसलिंग, they had to appear for the next counseling too. If they are not getting the first counseling seat, they should appear for the second counseling, and if they are not getting seat for the second counseling, they should go for the third counseling. Because आप लोग ये सोचेंगे कि like एक बार अप्लाई कर दिया, like when you are applying for the first time and you like you will be thinking that एक बार ही तो कर दिया, next time करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा. No, you're wrong. Like you should apply for each and every counseling in each and every counseling for that. Like ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये सब कॉलेज में सेम ही है. एनएमसी का जो रूल है वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, ये सब ऑल विल फॉलो द रूल्स इक्वली इन दिस केस. सो या like yeah, this all for the counseling process, how to get admission, how from where to apply and how to apply. ये सवाल का जवाब है इस वीडियो में. एंड बाकी like everyone asks about the campus tour, college tour या फिर hostel tour. तो पहले मैं ये बता दूँ कि कैंपस टूर जो है इसमें लाइक थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं खुद भी कैंपस ढंग से घूमती नहीं हूँ. लाइक
really, first of all, like it is a big campus, and जिस जो जो शुरुआत में आएंगे उसको बहुत अच्छा लगेगा, लाइक बहुत बड़ा कैंपस है, बट आफ्टर दैट यू विल गेट बोर्ड विद द कैंपस, लाइक आपको बहुत बोरियत आएंगे, तो इस वजह से मेरा कैंपस ब्लॉग नहीं आ रहे। हॉस्टल ब्लॉग तो कुछ दिखाने को है ही नहीं, पर फिलहाल क्या ही दिखाओ, जब दिखाऊंगी तो अच्छा खासा दिखा ही दूंगी। एंड या आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो कैंपस टूर एंड द हॉस्टल टूर, लाइक जो भी होगा, जितना भी होगा, मैं दिखाने का कोशिश जरूर करूंगी। सो वेट फॉर दैट वीडियो। एंड लास्टली अगेन, हजारों बच्चों का एक ही सवाल है कि हाउ इज द पेशेंट फ्लो, पेशेंट फ्लो कैसा है। सो लेट मी टेल यू, पेशेंट फ्लो ऑन एन एवरेज बोला जाए तो एवरेज भी नहीं होगा, उससे भी बहुत कम होगा। एंड इट इज अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड इट इज अ न्यू कॉलेज, तो थोड़ा ग्रो होने में टाइम लगेगा, पेशेंट को आने में टाइम लगेगा। तो it will take almost like 5 to 6 years to have a good patient flow. Like अगर मैं खुद like एक्सपीरियंस करके बोल रही हूँ, तो लाइक हाँ कि 5-6 साल तो लग ही जाएंगे अच्छा खासा पेशेंट फ्लो आने में। एंड वेदर लाइक आप लोग को ये लगता है ना कि क्लिनिकल्स 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 सबका एक ही बात है कि अगर पेशेंट तो अच्छा नहीं हुआ तो क्लिनिकल्स कैसे अटेंड कर रही हो। तो फिलहाल के तो हम बस थ्योरी अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। क्लिनिकल केस देखा जाए तो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ऑब्स गायनी ईएनटी ऑप्था एंड जनरल मेडिसिन में थोड़ा बहुत होता है पेशेंट, तो उसमें देख लेती हूँ। यानी कि सेकेंड ईयर में तो अगर आप क्लिनिकल पोस्टिंग की बात किया जाए तो हिस्ट्री टेकिंग इम्पोर्टेंट आपको सिखाया जाता है, ले कैसे लेना है, कैसे पेशेंट से कम्युनिकेट करना है, ये सब सिखाया जाता है। पर खैर हमारा हॉस्पिटल में इतना पेशेंट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। And yeah, that's all for today's video. I hope so you like this video. Don't forget to like, subscribe, and comment down, and share it with your friends and family who are willing to come in this institute for their med school. Okay, till then, bye.